Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, everyone. So, how are you? How are you? I I'm am Good morning. fine. And you, ma'am? I'm absolutely Okay. fine. You say, how are you? I'm doing good. I am also fine. Everybody is fine. Ma'am, your side weather is how? Uh, this time weather is very beautiful and it is cloudy also. Okay. You say, what kind of weather do you have? Ma'am, my side weather is brightness, Right. brighting. Bright. Weather is bright, correct? Weather is bright. Yes. That's fantastic. That's good. Okay, fine. Others, what kind of weather do you have? Others can also type and tell me, can speak and tell me. It's cloudy, ma'am. It's cloudy. Even here also it's cloudy. It's really beautiful weather. It's beautiful, ma'am. Good, good, good. Chalo. So every day we should be discussing certain things like that. Today we are going to start with the routine, past routine of yours. और इस past routine का सबसे बड़ा जो कारण है, जो benefit है, the benefit is to start speaking about past tense also. I know that most of the students can speak, but you are not able to speak in past tense also. So आज हम लोग जो daily routine, जो हम past routine की बात करेंगे, वो हमारी past routine जो है वो है कल का हमने कुछ भी किया हो उसके बारे में होगी. So I just want to tell you one thing, that past routine will help you to speak in past tense, speak in second forms. This will really help you to understand second form usage. Okay. So सबसे पहले who is going to come? अच्छा, first of all you tell me how many of you are ready to perform? Quickly tell me. How many of you are prepared to perform? Yes, ma'am. Okay, Shushila is ready. What about others? Ritik is ready. Good. Come on guys, tell me quickly how many of you are ready? What about Bodhiraj, Devika, Nancy, Vishal, Ritik? Come on guys, tell me. Ritik is ready. Yeah, Ritik is ready. What about the others? Tell me. Devika is also ready. Okay, okay. चलो एक काम करते हैं, आज हम लोग कुछ नया कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद लास्ट में आप लोगों की परफॉर्मेंस करेंगे, है ना. सबसे पहले हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे एंड देन लास्ट में हम लोग परफॉर्मेंस करने वाले हैं. आई होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट, है ना. तब तक आप अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं अबाउट द परफॉर्मेंस. ओके. अच्छा, आई जस्ट वांट टू आस्क समथिंग. मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहती हूँ. Guys, from 7th of June, like my classes are starting from school also. उसकी जो first class है वो 8 o'clock की होती है and I am the first teacher for that class. Like I go for dictionary activities and all, and English, I teach English also. So मुझे वो क्लास लेना है. आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हम लोग किस टाइम पे उस क्लास का टाइम चेंज करें, लाइक 8 to 9 की जगह क्या हम लोग उसे 7 to 8 कर लें या 9 to 10 कर लें? क्या लगता है आपको? किस टाइम में आप लोग ज्यादा कंफर्टेबल हैं, 7 to 8 में या 9 to 10 में? मैम 7 to 8 में. ओके. No, ma'am. 9 to 8. 9 to 8. Sorry, 9 to 8. Yes, ma'am. 9 to 8. Okay, okay. What about others? मैम 9 to 8 कैसे हो सकता है? 9 to 8 मतलब 9 to 10 बाबा. अंडरस्टूड है ये? या कम ऑन, बाकी लोग बताएं मुझे. सभी लोग बताएं, सभी लोगों की मेजॉरिटी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे. एक काम करते हैं, आप लोग चैट में टाइप कीजिए, लेट मी सी दैट, है ना. चैट में टाइप करें या तो 7 to 8 या 9 to 10. ठीक है, मुझे बताएं, जल्दी से बताएं, चैट में बताएं.
so that I can at least get it, है ना? आप लोग मुझे बस वो बता दीजिए। ठीक है, विशाल ने बोल दिया है 9 to 10, 9 to 10, 9 to 10, 7 to 8 भी है, 9 to 10 है। मेजॉरिटी 9 to 10 की है, लेकिन फिर भी बाकी लोगों का भी जान लेते हैं। शनु, अगर वो 9 to 8, 9 to 10 होता है, 9 to 10 होता है, तो क्या आप कर लेंगे उसे? अगर वो 9 to 10 होता है तो विल यू बी एबल टू डू दैट? मैम थोड़ा दिक्कत है क्योंकि कॉलेज का भी क्लास ऑनलाइन चलता है, तो क्या टाइम 10 से होता है स्टार्टिंग हो जाता है, वहीं 9:30 से स्टार्टिंग होता है। 9:30 से स्टार्ट होता है। अगर ऐसे करना होगा तो एक क्लास छोड़ना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं। अच्छा, अगर हम इसको 7 to 8 करेंगे तो नहीं कर पाएंगे सब लोग, है ना? 7 to 8 नहीं कर पाएंगे ना? सुशीला के अलावा बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, है ना? No, ma'am. चलिए देखते हैं। अभी सभी लोगों ने 9 to 10 तो बोला है, लेट्स सी। चलो कल हम लोग कल भी क्लास लेने वाली हूँ मैं। लास्ट टाइम मैंने आपकी क्या कहा था ना कि मैं कंपल्सरी क्लास लेने वाली हूँ नेक्स्ट वीक में, तो कल मैं आपकी क्लास लूंगी। कल हम लोग एक बार और इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और फिर काम कर लेंगे, ठीक है? चलेगा? इट विल वर्क, है ना? चलो कल और थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, एंड नया टॉपिक शुरू करने के लिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज हम लोग क्या नया शुरू कर रहे हैं, मैं बताती हूँ। आज हम नया शुरू कर रहे हैं फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। रीजन ये है कि टेंसेस में ज्यादा गैप नहीं देना चाहिए। अगर वो लाइन से चलते रहे तो उससे हमारा कनेक्शन बना रहता है उन लोगों के साथ में। तो अभी 3 से 4 दिन पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू किया था, कल मैंने पास्ट इंडेफिनिट शुरू किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा सा डिटेल टेंस होता है, पहला टेंस होता है, तो हमको डिटेल में समझना होता है। अब हम आज शुरुआत करने वाले हैं फ्यूचर सिंपल की। तो फ्यूचर सिंपल भी छोटा ही टेंस होता है। प्रेजेंट की ज्यादा हम लोग प्रेजेंट में ज्यादा बातें करते हैं, पास्ट में थोड़ी कम करते हो, फ्यूचर में उससे भी कम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए छोटा सा टेंस है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मैंने आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के टेस्ट अभी नहीं दिए हैं, तो आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस का टेस्ट दूंगी और फिर मैं आपको कल पास्ट टेंस का दूंगी। पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के टेस्ट छोटे छोटे हैं, तो वो हम लोग एक दिन में करेंगे। आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस का टेस्ट देने वाली हूँ, तो आप वो टेस्ट कीजिएगा और मुझे बताइएगा अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके साथ में होती है तो। ठीक है, शुरुआत करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल टेंस की। उसे आप प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल से कनेक्ट करते रहें, सो दैट आप जल्दी से टेंसेस को ड्रिल कर पाएंगे। वो कहते हैं ना, बीच में गैप कर दो तो भूल जाते हैं कि पिछली बार क्या समझ रहे थे। इसीलिए जरूरी है उसको एक ही रूटीन में लेकर चलना। एंड लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं आपके परफॉर्मेंसेस की। तो जो लोग नहीं थे क्लास में, वो लोग भी अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं। जैसे मैंने कल राइटअप भी शेयर कर दिया था पास्ट रूटीन वाला, जो मेरा रूटीन था। एक दिन मैंने बनाया था मंडे को संडे का रूटीन। ओके, आप लोग वो पढ़कर भी तैयार कर सकते हैं, या फिर डोंट वरी, जिन लोगों ने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है वो बस अपना एक रिवीजन करें। तब तक हम लोग ये टेस्ट पढ़ लेते हैं। बेटा प्रोनाउन का टेस्ट मिल जाएगा। अभी हमारा प्रोनाउन का टेस्ट जो है वो अप्रूव नहीं हुआ है। हम लोगों को टेस्ट बना के सर को दिखाना होता है, तो प्रोनाउन का टेस्ट अभी अप्रूव नहीं हुआ है। देखते हैं, तो कल हो जाएगा तो मैं कल दूंगी, अप्रूव हो जाएगा आई विल गिव यू। अभी उन्होंने वो चेक नहीं किया है ना?
पर हो जाएगा तो मैं आपको दे दूंगी, डोंट वरी। चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की। फ्यूचर सिंपल टेंस में सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में जहां जहां हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की एस या ईएस फॉर्म लगाते हैं, वहां वहां हम लोग जो है वो फ्यूचर टेंस में जाएंगे तो डू वर्ब लगाएंगे। इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। डू का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और पास्ट में जब हम रहते हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे डू डज लिखा जरूर है पर उसका मतलब है सभी वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म। तो जब हम प्रेजेंट टेंस में रहते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या एस या ईएस फॉर्म लगाते हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। जब हम पास्ट में रहते हैं तो हम लोग सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। जब हम फ्यूचर में रहते हैं तो हम विल और शैल के बाद में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये फ्यूचर टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट होता है कि विल और शैल तो जरूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि विल और शैल बताता है फ्यूचर, विल और शैल बताता है फ्यूचर टेंस। ओके, चलिए अब सीखते हैं कि इसमें दो वर्ब होती हैं। स्पोकन में हम विल ही सभी के साथ यूज करते हैं, ग्रामर में हम लोग शैल यूज करते हैं आई और वी के साथ में। देखा जाए तो आजकल हम विल भी यूज करने लगे हैं, लेकिन शैल भी यूज किया जाता है आई और वी के साथ में ग्रामर में। ग्रामर में हम विल भी यूज करने लगे हैं टिपिकल ग्रामर में, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में तो हमेशा विल ही यूज करते हैं। आप चाहें तो शैल लगा सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, लेकिन किनके साथ में? आई और वी के साथ में। जस्ट रिमेम्बर दैट, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे आई और वी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो जनरली हम शैल से बनाते हैं। हम विल से भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा एप्रोप्रिएट, ज्यादा प्रेफरेबल शैल से बनता है। विल आई गो बनाएंगे तो गलत नहीं होगा, शैल आई गो बनाएंगे तो भी गलत नहीं होगा, तो दोनों सही है। ध्यान देखें, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। अच्छा, ये मैं अलग से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। देखो, शैल आई गो, क्या मैं जाऊं? शैल आई गो। या फिर इसको ये भी बोलते हैं, क्या मैं जाऊंगा, ऐसे भी बोलते हैं ना, शैल आई गो। इसको मोस्ट प्रेफरेबल है, मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। विल आई गो, विल आई गो, लाइक दे आर नॉट दैट एप्रोप्रिएट, और बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। तो अगर आप विल आई भी बोल रहे हैं तो वो गलत नहीं है, विल वी भी बोल रहे हैं तो गलत नहीं है, चलेगा, इट वर्क्स। एग्जाम की पर्पज से बैंक हो गया, एसएससी हो गया, इसके पर्पज से हम लोग है ना यूज करेंगे सेकंड लाइक विल और शैल। ठीक, अच्छा, फंक्शंस देख लीजिए। इसके फंक्शंस मैंने ओरिजिनली हिंदी में भी लिखे हुए हैं। द एक्शन ऑफ फ्यूचर, द एक्शन ऑफ फ्यूचर, ऐसे एक्शंस जो फ्यूचर में होने वाले हैं, इट इज कॉल्ड भविष्य में होने वाले एक्शंस। इट इज कॉल्ड भविष्य में होने वाले एक्शन, विच इज कॉल्ड टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ। ये अगर टाइम लगा हो तो भी फ्यूचर है, नहीं लगा हो और भविष्य में होंगे तो भी वो फ्यूचर के सेंटेंसेस हैं। अपकमिंग ईयर, लेटर, आफ्टर, ये ऐसे टाइम वर्ड्स हैं। मैंने कहा था ना मैं टाइम वर्ड्स आपको बाद में पढ़ाऊंगी। ये ऐसे टाइम वर्ड्स होते हैं जो कि हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं फ्यूचर में। जितनी भी नेक्स्ट वाली चीजें होती हैं, अपकमिंग वाली चीजें होती हैं, लेटर या आफ्टर वाली चीजें होती हैं, ये जनरली हमें फ्यूचर बताती हैं। ये काम उस समय होगा। सेम विथ टुमारो आल्सो। फ्यूचर की नॉर्मल पहचान है टुमारो, कल, आने वाला कल, है ना। दूसरा होता है प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग। आपने सुना होगा वेदर फोरकास्टिंग, वेदर की भविष्यवाणी की कि आज बारिश होगी इन इलाकों में। प्रिडिक्शंस, जैसे आपको पता है कंस के बारे में भविष्यवाणी थी कि उसी की बहन का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये भविष्यवाणी बहुत पहले की गई थी। ऐसी जो प्रेडिक्शंस होती हैं, ऐसी जो भविष्यवाणी होती हैं, वो भी फ्यूचर टेंस में आती हैं। एंड फ्यूचर की कोई भी प्लानिंग हो, हम ये करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम इतनी सेफ्टी रखेंगे, हम लोग कोरोना लॉकडाउन खुलने के बाद भी बाहर नहीं जाएंगे, ऐसे कई जो एक्शंस होते हैं वो हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो भविष्य में होने वाले काम, भविष्य की वाणी, भविष्यवाणी, विच इज कॉल्ड प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग, एंड फ्यूचर प्लानिंग।
मैंने अलग अलग कर दिए हैं लेकिन मीनिंग तीनों का एक ही है, फ्यूचर में होने वाले एक्शंस, है ना। जैसे हम ये करेंगे, हम क्लास यहाँ लेंगे, हम क्लास वहां लेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, लाइक दैट। ठीक, चलिए मूविंग टूवर्ड्स स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, उसके बिना काम नहीं होता है। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर सिंपल है, मैं मार्केट जाऊंगा। अब आपको पता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, है ना। तो हमने उसको स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला ना लिखकर डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखा है। मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जाऊंगा। अब आपको पता है विल नॉट होता है, शैल नॉट होता है, तो होगा आई विल नॉट गो टू मार्केट, आई शैल नॉट गो टू द मार्केट। अच्छा, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है, क्या मैं मार्केट जाऊंगा, शैल आई गो टू मार्केट, शैल आई गो टू मार्केट। क्या मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, शैल आई नॉट गो टू मार्केट, shall I not go to market? This is how we can make sentences, है ना। Shall I not go to market को हम शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं, जैसे मैंने कल भी कहा था, शॉर्ट फॉर्म में बहुत जल्दी आ जाता है, इट लुक्स रियली लाइक स्पोकन, तो बोलेंगे shan't I go to market। लेकिन अगर यहाँ पे किसी को लग रहा हो मैम won't लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं। won't I go to market, will I go to market, ये भी सही है मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से। दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, एक और फ्यूचर है, हम पढ़ाई करेंगे, हमने प्लानिंग कर ली है कि हम पढ़ाई करेंगे। एक साथ से तो ये प्लानिंग हो नहीं पा रही है, ना एग्जाम है ना ग्रुप स्टडीज है, सो या वी आर मिसिंग दैट। आई डोंट नो आप में से कितने लोग मिस कर रहे हैं। आर यू ऑल्सो मिसिंग स्टडीज गाइज, आर यू ऑल्सो मिसिंग विजिटिंग स्कूल कॉलेजेस, correct? Yes, ma'am. Yes. Yes. Yes, ma'am. It is not the right time, correct or not? 1 year was okay, but this year also the same thing continues. बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, Yes, ma'am. correct? अच्छा, do you like group studies? अच्छा लगता है आपको ग्रुप स्टडी करना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Are you also missing it now, correct? Yeah. चलो, तो फोन पर बातें होती हैं, do you talk over phone? Mm, Yes, Sometime. ma'am. Yes, अच्छा, ma'am. फोन पर पढ़ाई हो सकती है क्या, यू टेल मी, कैन यू स्टडी? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. No. जैसे एक No, मैसेज ma'am. आता है, No, हम ma'am. तुरंत देखते हैं हमारे इंस्टाग्राम में क्या मैसेज आया है। Notification आ हाँ, मतलब मैं तो यही करती हूँ, अगर मैं कभी पढ़ाई भी करती हूँ, सपोज इफ आई एम स्टडीइंग एनी ऑफ द थिंग्स, लाइक अगर मेरा बीएड का है या फिर मेरा दूसरे कोई एग्जाम्स हैं टीचिंग से रिलेटेड, कोई ब्रिटिश काउंसिल का एग्जाम है, उसके लिए पढ़ाई करते हैं मोबाइल वगैरह से, तो सबसे पहले या तो लैपटॉप लो अगर अवेलेबल है तो, जैसे मेरे पास तो है, या तो मोबाइल से करते हो तो फिर नोटिफिकेशन में ध्यान जल्दी जाता है। एम आई करेक्ट? yes, ma'am. Yes, है ना? ma'am. हाँ, मतलब Yes, आई ma'am. कांट स्टडी, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम अ ट्रेनर, Yes, ma'am. बट मैं तो बिल्कुल मोबाइल से नहीं पढ़ सकती। इंस्टाग्राम में फिर Ma'am. मैसेजेस स्क्रॉल होने लगते हैं, देखने लग जाते हैं हम लोग। Yeah. ओके, चलो, तो फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे। अगर ये प्लानिंग कभी आप कर रहे हो तो बिल्कुल प्लान कीजिए, वील स्टडी। अच्छा, वी वोंट स्टडी भी सही है, वी शांट स्टडी इज आल्सो राइट वन। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते थे कि अब आपने क्योंकि बी वर्ब पढ़ा है पहले, उसमें विल पढ़ा है, शैल पढ़ा है, आपने हैव वर्ब में भी पढ़ा है, तो आपको ये अब आइडिया हो गया है कि विलंट और शैलेंट तो नहीं होता है, बट वोंट एंड शैंट ही होता है। कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है दैट वोंट का विलेंट होता है या शैलेंट होता है, बट इट इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट राइट। चलिए, शैल वी स्टडी, आई कैन ऑल्सो से विल वी स्टडी, क्वेश्चन टोन मैटर्स अ लॉट फॉर दैट। अच्छा, स्टडी, शैंट वी स्टडी, हम चाहे तो वोंट वी स्टडी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम जनरली सोचते हैं कि आई और वी के क्वेश्चंस हम बनाएंगे तो हम शैल से बनाएंगे, तो वो प्रोसेस चल रही है। लेकिन डोंट वरी, विल को अपन ने इग्नोर नहीं किया है, यू के साथ देखो शैल तो कभी लगता नहीं है इस तरह से, फ्यूचर में शैल नहीं लगेगा, तो हम लोग तो विल ही लगाएंगे। देखो, तुम वहां जाओगे, ये काइंड ऑफ फ्यूचर है, प्लानिंग है या फिर ऑर्डर है, लेकिन है ना, तुम वहां जाओगे, यू विल गो देयर,
तुम वहां नहीं जाओगे, you will not go there or you won't go there, you will not go there or you won't go there, है ना? क्या तुम वहां जाओगे? will you go there? पूछ रही हूं मैं, will you go there? अब आंसर आएगा yes I will go, no I will not go, answer is yours. Okay? क्या तुम वहां नहीं जाओगे? Now I am confirming, correct or not? I am confirming the things. क्या तुम वहां नहीं जाओगे? अब आप मुझे बोल सकते हो yes ma'am I will not go, no ma'am I will go, है ना? तो ये आंसर स्पीकर का चॉइस होता है कि उसका पॉजिटिव आंसर है या उसका नेगेटिव आंसर है, लेकिन क्वेश्चंस हमेशा इंटरोगेटिव या इंटरोनेगेटिव में ही पूछे जाते हैं। वो बिल्कुल भी आंसर गिविंग नहीं है, वो क्वेश्चन गिविंग है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर गिविंग है। पॉजिटिव आंसर है, यस में आंसर है तो आप पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज करते हैं, नो में आंसर है तो आप नेगेटिव यूज करते हैं। इसीलिए ये जो दो सेंटेंसेस होते हैं ना गाइस, ध्यान से सुनना, ये जो दो सेंटेंसेस होते हैं ना, इन्हें कहा जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इन्हें कहा जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें आप कुछ डिक्लेयर करते हो। आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, यू आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन, यू आर गिविंग आंसर आइदर इन नेगेटिव और इन पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ने डिक्लेरेटिव कहा जाता है। डिक्लेरेशन तो कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हमेशा इंटेरोगेटिव होते हैं, वो कभी भी डिक्लेरेटिव नहीं होते हैं, वो क्वेश्चन ही पूछते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सभी सब्जेक्ट के साथ बनाया है सो दैट यू विल नॉट हैव एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। दे विल हेल्प मी, अब मैं थोड़ा सा हिंदी में इंग्लिश से हिंदी बताती हूँ। वे मेरी सहायता करेंगे और मदद करेंगे। दे वोंट हेल्प मी, वे मेरी सहायता नहीं करेंगे। डिक्लेरेशन चल रहा है ना, अब इंटरोगेशन हो जाए, क्वेश्चन हो जाए। क्या वे मेरी सहायता करेंगे? विल दे हेल्प मी? क्या वे मेरी सहायता नहीं करेंगे? वोंट दे हेल्प मी? वोंट दे हेल्प मी? क्या बात है, गलत बात है ना, करना चाहिए मेरी हेल्प। इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। कुछ और देख लेते हैं। देखो, ही और शी से भी बनाया है, इट से भी बनाया है। चलो वह इंग्लिश हिंदी ले लेते हैं, पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं। He'll come to my home tomorrow। अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लगाया है he'll, है ना। He'll come to my home tomorrow, वह कल मेरे घर आएगा। He'll not come to my home, या फिर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में बना सकती हूँ, he won't come to my home tomorrow, वह कल मेरे घर नहीं आएगा। Will he come to my home tomorrow? क्या वह कल मेरे घर आएगा? अच्छा, यहाँ तो shall का कोई झंझट ही नहीं है, there is no shall with he, तो will ही लगेगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। क्या वह कल मेरे घर नहीं आएगा? Won't he come my home tomorrow? Won't he come to my home tomorrow? पता नहीं यार, I don't know. This is how you can answer. ठीक है, आगे बढ़ जाएं। वह कल मेरे लिए खाना बनाएगी। She'll prepare dinner for me tomorrow। यहाँ पे cook भी कर सकते हैं, if you like you can ask, you can go for cook, खाना बनाना cook भी कर सकते हैं। She'll cook dinner for me tomorrow। कल वह मेरे लिए खाना नहीं बनाएगी। She won't prepare dinner for me tomorrow। क्या वह कल मेरे लिए खाना बनाएगी? तुम्हें क्या लगता है, कल मेरे लिए बनाएगी क्या? तो will she prepare dinner for me tomorrow? It should be for me, है ना? For me tomorrow। क्या वह कल मेरे लिए खाना नहीं बनाएगी? Won't she prepare dinner for me tomorrow? इस तरीके से आप जब सेंटेंसेस बनाते हैं, it helps you a lot to understand tenses better। अच्छा, it का भी बनाया मैंने यहाँ पर। It will rain tomorrow, कल बारिश होगी। It won't rain tomorrow, कल बारिश नहीं होगी। Will it rain tomorrow? कल बारिश होगी। Won't it rain tomorrow? कल बारिश नहीं होगी। These are the sentences with it, she, he, they, you, we, and I. All 7 subjective pronouns together. Okay. Understood? Now tell me any confusion in that?
No, I ma'am. think it's not that tough, it's quite easy one. चलो, तो ये तो हो गया फ्यूचर टेंस. अब अगर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा कनेक्शन बताना हो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में, तो कनेक्शन बताती हूँ आपको मैं, है ना. जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी शेयर माय अनदर फाइल. आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको टेंसेस का एक चार्ट पढ़ाया था. उस चार्ट के हिसाब से मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे. वो चार्ट हमने जहाँ फर्स्ट फॉर्म्स पढ़े थे, हमने जहाँ पे सेकंड फॉर्म्स पढ़े थे, फॉर्म्स का डिवीजन पढ़ा था. आज मैं वो चार्ट फिर से शेयर कर रही हूँ आपको एक दूसरे के साथ कनेक्शन बताने के लिए. हाउ टू प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेस. चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे. टेंस चार्ट तो आप लोग समझ चुके थे पहले भी, ये आपके पास ऑलरेडी है, स्टडी दैट. अब आप जानते हैं कि देखो मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म, एसईएस फॉर्म पढ़ा दिया है, मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स भी पढ़ा दिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट हमने कल ही पढ़ा है, और आज मैंने आपको फ्यूचर सिंपल टेंस भी पढ़ा दिया है, एक्शन वाला. ठीक है, तो ये तीन तो हम पढ़ चुके हैं. आगे बढ़े तो टेंस चार्ट है हमारे पास में. इस चार्ट को पता है कैसे समझना होता है, लेट मी टेल यू. Just ओके, ये चार्ट को पता है कैसे समझना होता है. इस चार्ट को समझने के लिए आपने है ना, मैंने है ना सब कुछ लिखा है इसके अंदर. मैं बताऊं, मैंने इसके अंदर टू बी वर्ब का एग्जाम्पल भी लिए हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में. टू हैव वर्ब के लिए हैं, क्योंकि अब हम डू या एक्शन वर्ब पढ़ चुके हैं, उसके एग्जाम्पल भी डाल दिए हैं. फिर हम लोग आगे आईएनजी पढ़ेंगे तो मैंने उसके एग्जाम्पल भी तीनों टेंसेस में डाल दिए हैं. फिर हम परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल भी तीनों टेंसेस में डाल दिए हैं. और फिर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस फिर से आईएनजी पढ़ने वाले हैं. रूल थोड़ा अलग हो जाएगा, उसको भी हम लोगों ने यहाँ डाल दिया है मैंने, है ना. तो अब मैं आपको थोड़ा सा इस टेंस, इस प्रैक्टिस के बारे में बताती हूँ. अगर आप लोग सर की क्लासेस अटेंड करते हैं, है ना, तो रेज हैंड करें कितने लोग हैं जो सर की क्लासेस अटेंड करते हैं. कम ऑन, रेज योर हैंड्स. सिर्फ 3 लोग करते हैं, ऐसा क्यों? रेगुलर किया कीजिए. अच्छा, ये जो 3 लोग करते हैं सभी लोग किया कीजिए. सर की क्लासेस में टॉपिक्स बहुत अलग होते हैं, हमारे रेगुलर टॉपिक जैसे नहीं होते हैं. Am I correct, 3 people? They are not regular topics, है ना. I teach different things and sir teaches different things, correct? Yes, ma'am. Exactly, बिल्कुल अलग होता है, एक जैसा कुछ नहीं है. सर का पढ़ाने का तरीका सर का है ना. अंडरस्टैंड दैट. चलो, तो हम लोग जो टेंस चार्ट पढ़ रहे हैं, अब आप तीनों को पता है कि टेंस चार्ट क्या है. हम जो टेंस चार्ट पढ़ रहे हैं, अच्छा जो लोग अटेंड नहीं कर पाते, फॉर एन एग्जांपल, वो सैटरडे क्लास में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. ठीक है, तो जो ये जो टेंस चार्ट है हमारा, टेंस चार्ट में हम लोग सब कुछ प्रैक्टिस करने के पर्पस से लिख लेते हैं, सो दैट आप लोग इसे प्रैक्टिस कर पाए. जैसे मैंने क्या किया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में टू बी वर्ब ले लिया है प्रैक्टिस के लिए. मैंने सेंटेंस भी बना लिए हैं, देखते हैं ध्यान से. ये हम शायद पहले कर चुके हैं, लेकिन एक बार इसको फिर से कर रहे हैं रिविजन. ओके, वह एक सिंगर है, शी इज अ सिंगर. वह एक सिंगर थी, शी वॉज अ सिंगर. सिंगर का मतलब है गायक. वह एक सिंगर होगी, शी विल बी अ सिंगर. अब ये तो सिंगुलर से था, मैंने प्लूरल से भी लिया है. हम छात्र हैं, वी आर स्टूडेंट्स. हम छात्र थे, वी वर स्टूडेंट्स. हम छात्र होंगे, वी विल बी स्टूडेंट्स. नो एक्शन, ओनली नॉन एक्शन सेंटेंस जो स्टेट बताता है. ठीक है, मूविंग नेक्स्ट. टू हैव, शी वाला ले लेते हैं. उसके पास एक गिटार है, शी हैज अ गिटार. उसके पास एक गिटार था, शी हैड अ गिटार. उसके पास एक गिटार होगा, शी विल हैव अ गिटार. हमारे पास कई किताबें हैं. अब प्लूरल से सेंटेंस है, वी हैव मैनी बुक्स. हमारे पास कई किताबें थी, वी हैड मैनी बुक्स. हमारे पास कई किताबें होंगी, वी विल हैव मैनी बुक्स. डू वर्ब देख लेते हैं. वह एक गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग.
वह एक गाना गाएगी, सॉरी उसने एक गाना गाया या गाती थी, दोनों सही है। शी sang a song, वह एक गाना गाएगी, she will sing a song। ये हमने आज पढ़ा है, we studied this today। okay, हम किताबें पढ़ते हैं, we read books। हम किताबें पढ़ते थे या हमने किताबें पढ़ी, we read books। हम किताबें पढ़ेंगे, we will read books। हमने ये आज पढ़ा है, ठीक है। अब आप लोग अपने चैट ऑप्शन का यूज करेंगे एंड मुझे आंसर देंगे कुछ सेंटेंसेस का, ठीक है। आई के साथ वॉज ही लगता है, आई के साथ वर नहीं लगता। आई तो सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन लगता उसके साथ वॉज है। वो वर लगता जरूर है पर वो दूसरा कंडीशन है, वो दूसरी बहुत अलग कंडीशन है, लगता वॉज ही है। आई वॉज ही होता है, आई वर नहीं होता है। हम कई बार ये प्रैक्टिस पहले कर चुके हैं ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे प्रैक्टिस करेंगे आज, है ना। आज हम चलो आई से कर लेते हैं क्योंकि इसमें आई नहीं है, इसलिए आप लोग सेंटेंस लिखेंगे, मुझे इंग्लिश में सेंटेंस देंगे आप लोग, मैं हिंदी में दे रही हूँ। रेडी रेडी, एवरीबडी विल ट्रांसलेट दैट, ठीक है। पहला सेंटेंस है, मैं एक डॉक्टर हूँ। कम ऑन, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, कम ऑन। गुड गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सेंटेंस है आई एम अ डॉक्टर, एब्सोल्युटली राइट। सेंटेंस इज आई एम अ डॉक्टर, गुड। चलिए कैसे बोलेंगे, मैं एक डॉक्टर था। मैं एक डॉक्टर था। टाइप करते चाहिए, है ना, कीप टाइपिंग। गुड गुड, वेरी गुड। आई वॉज अ डॉक्टर, गुड। कैसे बोलेंगे, मैं एक डॉक्टर होऊंगा। हाउ विल यू से, मैं एक डॉक्टर होऊंगा। होऊंगा या बनूंगा, व्हाट द सेम मीनिंग। मैं एक डॉक्टर होऊंगा या बनूंगा। गुड, आई विल बी अ डॉक्टर, वेरी नाइस। आई विल बी अ डॉक्टर, वंडरफुल। चलिए डन। अब आते हैं हैव वर्ब पर, ठीक है। अच्छा कैसे बोलेंगे, मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है। मेरे पास एक कार है, वेरी गुड। आई हैव अ कार, एब्सोल्युटली राइट। आई हैव अ कार। नैन्सी आई के साथ हैज नहीं लगता। आई हैव, आई के साथ हैज नहीं लगता है नैन्सी, हम लोग ये कई बार पढ़ चुके हैं बेटा। आई हैव अ कार, ओके। इसका पास्ट बनाते हैं। मेरे पास एक कार थी। मेरे पास एक कार थी, गुड गुड, वेरी गुड। आई हैड अ कार, आई हैड अ कार, गुड। चलिए फ्यूचर ले लेते हैं, मेरे पास एक कार होगी। लेट अस टेक फ्यूचर, मेरे पास एक कार होगी। मेरे पास एक कार होगी। I will have a car, I will have a car, very good। I will have a car, good good good। हम लोग जानते हैं ना, will के बाद have ही आएगा, will के बाद has नहीं आता है, ठीक है, वेरी गुड। अब एक्शन पे आ जाते हैं, जो recent tenses पढ़े हैं उन पे आ जाते हैं। कैसे बोलेंगे, मैं कार चलाता हूँ। मैं कार चलाता हूँ। मैं कार चलाता हूँ। I drive a car। द कार नहीं होगा, कोई स्पेसिफिक कार नहीं है, एक ही कार है, कोई भी एक कार है। बोलेंगे I drive a car। यस यस, I drive a car। बोधिराज अ कार लगेगा, एक कार चलाता हूँ, है ना। एक नहीं बोलूं तो भी अ ही आएगा, ठीक है। और द कब आएगा, जब कार स्पेसिफिक हो, वही वो वाली कार चलाता हूँ, या मैंने जो कार चलाई है उसकी बात हो रही है, तो पास्ट में हो सकता है। लेकिन अभी तो आप आ ही लेके चलें। देखिए मैंने सॉन्ग में भी आ लगाया है, ओके।
मैंने एक कार चलाई या मैं एक कार चलाती थी. कम ऑन. मैंने एक कार चलाई या मैं एक कार चलाती थी. मैंने एक कार चलाई या मैं कार चलाती थी. कम ऑन. क्विकली टेल मी. वर्ब शीट में ड्राइव की सेकंड फॉर्म लिखी है. बहुत सारे लोगों को सेकंड फॉर्म नहीं आ रही होगी, है ना? नहीं. नैतिक वॉज एंड वर तो है ही नहीं ना बेटा. ऋतिक वॉज एंड वर तो है ही नहीं ना. वॉज एंड वर प्रेजेंट पास्ट सिंपल में नहीं लगता है एक्शन के साथ. वेरी गुड देविका. इट शुड बी आई ड्रोव अ कार. आपको वर्ब शीट पढ़ने के लिए तो दी है. आई स्टूडेंट्स बोलते हैं हमको इंग्लिश नहीं आ रही है. अरे भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना. ट्रेनर क्या करेगा? आइडियाज देगा, प्रैक्टिस करवा देगा, लेकिन बाकी चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी. आई ड्रोव अ कार, है ना? आई ड्रोव अ कार. ओके. नेक्स्ट है मैं कार चलाऊंगा. मैं कार चलाऊंगा. कम ऑन. मैं कार चलाऊंगा. ये आप लोग जो वॉज वर लगाते हो ना, आई वॉज ड्राइव अ कार, एक चीज याद रखना कि वॉज एंड वर के बाद फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आती. वॉज एंड वर के बाद आईएनजी फॉर्म आती है. सेंटेंस होता है मैं कार चला रहा था, वो नहीं है सेंटेंस. आई विल ड्राइव अ कार. ओके, चलिए, वेरी गुड. तो आप इस तरह से रोज प्रैक्टिस करें, रोज करें, ताकि आप लोग अपनी ये जो टेंसेस प्रैक्टिस है इसे कंटिन्यू